औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Dear students, in our previous lecture, we had tried to talk about the dire need of a standing crisis management organization, because the time in which we are living and as we are moving ahead, life and circumstances, they both are being affected, and the potential of crisis is increasing day by day. Therefore, we felt and we emphasized that there is definitely a need to have a permanent standing organization at every level to manage any crisis which can occur or surface any time. While discussing that, we had talked about that whenever we create, organize any organization or department or team, we have to keep certain things in mind to ensure that it really delivers the goods that we expect from it. जिस इदारे या तंजीम को हम तश्कील देना चाहते हैं, मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, और ख़ास तौर से जब नए इदारों को तश्कील दिया जाता है तो उसमें बेशुमार चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। और सबसे अहम बात यह होती है कि हम जिस काम के लिए एक इदारे को बना रहे हैं वो इदारा मौसर हो, फ़आल हो और इस काबिल हो कि वो उस काम को बतरीक़े आसन निभा भी सके, पूरा भी कर सके। We had discussed a couple of points, and the last point that we discussed was it must have more than one characters, and excluding the other ones, it must have an anticipatory character. इसके खदो खाल में, इसकी बनावट में, इसकी तश्कील में, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में ये अहलियत भी होनी चाहिए कि ये एक मुंजमद पत्थर की तरह ना हो, बल्कि हालात व वाक़यात को अपने मकाम पर, मकामी सतह पर, कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर जांचती रहे, परखती रहे, उन पे नज़र रहे, और उसमें से साथ ही साथ ये कुछ चीज़ों की पेशगोई भी करती रहे कि ऐसा भी हो सकता है, since the contemporary world international scenario is changing like that, or it is being affected by certain things, how can we be affected with the same process of phenomenon that's going on? That's called anticipatory. कि सैलाब या तूफान जब हम तक पहुंच चुका होता है तो बहुत सारी चीज़ें वक्त से हमारे हाथ से गुजर चुकी होती हैं, निकल चुकी होती हैं। अगर हम पहले से ये सोच के रखें कि ये मुसलसल बरसातें एक सैलाब की शक्ल भी इख्तियार कर सकती हैं, तो फिर हम उसके लिए इंतज़ामात के लिए भी पहले से तैयार होंगे। But if we sleep over it, and if we keep our ears deaf and eyes closed, as far as futuristic vision is concerned, then probably we'll not be able to manage the crisis
that we can if we work with an anticipatory vision or a futuristic approach. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ से आएगी और कैसे. Now these are the questions which we will resolve once we'll have the people, its members, specialists, technical specialists, subject specialists, etc., etc. And then at operational level, the essential equipment, we'll be able to procure that and keep it ready at hand so that we can use the said resources at a very short notice of time. So ये इसके अंदर ही ये सिफत या ये खूबी मुज़मिर होनी चाहिए कि मुस्तक़बिल की जानिब भी इसकी नज़र हो, सिर्फ हाल तक या प्रेजेंट तक जुड़ा रहने से, मुक़य्यद रहने से शायद हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे. Well, that is as far as the inbuilt anticipatory capability or ability of this organization is concerned. This is the most important feature it must have inside its own body. We are not going to import the people right at the neck of the time कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए कि इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं और अब क्या होगा. That will not be possible, and then we'll be dependent. It has to be independent. Rather, it has to be self-sufficient in terms of data input, in terms of intellectual outlook, in terms of decision making, in terms of resources, which will come later, and we'll explain them one by one. Just look towards the slide that says fast mobilizing. ये शायद थोड़ा सा अजनबी लफ्ज़ हो आपके लिए, fast mobilizing, कि बहुत जल्दी हरकत में आ जाए. Now remember, when crises occur, the biggest and the most dominant feature of the crisis that we had discussed was that it's sudden, abrupt, fast. बिजली की तरह से, जैसे आसमान की बिजली कौनती है, क्राइसिस इसी तरह से जन्म लेती है. और उस वक्त अगर हम नींद में हों, हमें उस वक्त 10 कश्तियों की ज़रूरत पड़ती है. एंड वी हैड नेवर थॉट ऑफ इट कि वो कश्तियाँ कहाँ से आएंगी, उनको कितना टाइम लगेगा, कौन हमें देगा, उनको चलाने वाले लोग कहाँ से आएंगे, वो किसके पास मौजूद हैं, कितने फासले पर हैं, और उनको चलाने के लिए whatever equipment is required, if they are motor boats, do we have the petrol also, are they in ready position to function and reach the spot within the desired time. इसको कहते हैं mobilization. अब mobilization दो तरह की है, एक तो mental mobilization है और दूसरा physical mobilization है. आपके जहन को भी फौरी तौर से उन क्राइसिस के साथ या उस बहरान के साथ निमटने के लिए फौरी तौर से एक कंप्यूटर, एक मशीन की तरह चलना शुरू हो जाना चाहिए. इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड समथिंग, इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन योर होमवर्क, इफ़ यू हैव ऑलरेडी deliberated on various situations, your mind will automatically start working. And remember, when the fire breaks out, after that, if you are in search of the fire extinguisher or you are trying to contact the fire brigade, you should not be surprised that you may not be able to get the firefighting vehicle or the firefighting staff, or even sometimes you will find that a firefighting vehicle has reached you, but it doesn't have water.
that will bring another shock to you. मोबिलाइजेशन का आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसकी मैं मिसाल आपको यूं दूंगा कि अगर हम एक बहुत बड़े इदारे में हैं या बहुत बड़े घर में हैं या एक बहुत बड़ी तंजीम में या महकमे में हैं और वहाँ सैकड़ों बिजली के बल्ब हैं, ट्यूब्स हैं, पंखे हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, whatever the electric appliances are there for smooth functioning of that department. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सोर्स ऑफ पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो none of these things is going to be useful for you. अब इसका कंट्रोल कहाँ है? फास्ट मोबिलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है इसका एक मेन स्विच भी होता है। अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो सारी लाइट्स, सारे पंखे, ऑल द इक्विपमेंट दैट्स फंक्शनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट विल सीज टू फंक्शन। लेकिन अगर आप सुबह में आते हैं ऑफिस को, जब आपने खोलना है तो आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, आप उस वक्त अलग अलग बटन तलाश नहीं करते, एक जो आपने मेन स्विच रखा होता है, यू जस्ट स्विच ऑन एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, ऑल अप्लायंसेस विल स्टार्ट फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली। ऐसा ही आपका एक प्लान होना चाहिए जिसका नाम ही मोबिलाइजेशन प्लान होना चाहिए। जैसे किसी भी स्कूल में ब्रेक ख़त्म होने के लिए या एक पीरियड ख़त्म होने के लिए एक घंटी बजती है जो छोटी सी एक चीज़ है, एंड दैट मीन्स दैट द क्लास हैज़ स्टार्टेड एंड ऑटोमेटिकली द टीचर गोज़ टू द क्लास, स्टूडेंट्स गो टू द क्लास, पीएन गोज़ टू हिज ओन प्लेस एंड clerks etc. whatever, whoever is wherever is required, he'll reach there. ये है आपका मोबिलाइजेशन सिस्टम और ये आपको पहले से तैयार करके रखना होगा कि जब ज़रूरत पड़ती है। अब हमने ये भी बात कई दफ़ा की और इसके बाद भी करेंगे कि क्राइसिस की कोई एक शक्ल नहीं होती, उनकी जुग्राफियाई खदोखाल से भी ताल्लुक़ होता है, मौसम से भी ताल्लुक़ होता है, सडन भी होती हैं, एक्सीडेंटल भी होती हैं, डिज़ास्टर्स भी होते हैं। There are 101 shapes और हर सिचुएशन के लिए we require different kind of specialists, we require different kind of equipment, we require different kind of coordination. Let's say for firefighting we need altogether a different team of resources and resources. For management of flood and its damages, we require absolutely a different set of resources. For an earthquake, for a power failure, for accidents, all these situations that I'm talking of, they are no more a new thing, they are not a novelty. ये पेश आती रहती हैं, आ रही हैं, and every day we are watching them and seeing them. लेकिन what I'm trying to stress is कि इनमें से हर सिचुएशन के लिए आपको अलग अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, अलग स्टाफ की ज़रूरत होती है, अलग स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, who are already there present or coordinated or attached or integrated with your organization. अब इनके लिए आपने ये प्लान बना के रखना है, like the main switch. When the thing goes on, when the crises are really visible and we are sure that we are now going to face this crisis, so you should switch on the correct main switch, and that should automatically ensure that all resources, wherever they are, they get ready and they reach when they
get the instructions from the proper place. ये बात बज़ाहिर तो बड़ी आसान सी लगती है, लेकिन ये एक मुश्किल काम है, and it needs real deliberation in detail. और इसकी हम बाद में आएंगे कि how can we ensure that? We are talking about so far conceptually, but how can we ensure? We can ensure, and after all, there's nothing impossible in this world. If we mean business, we can really do it. So, mobilization is very, very important, and this organization, which particularly you are creating for the crisis management, it must have inbuilt, very effective, quick mobilizing capability. That's as far as the mobilization of resources and organizations is concerned. Just see the next point. It must be research oriented. Now this organization, it doesn't have to be a dull organization. It doesn't have to have a temperament of a typical office work. No. As it has to be anticipatory. It can't be anticipatory unless it is research oriented. When there is time, when there are no crises, when we have enough time, or even otherwise during the crisis, when the crises are going on, this process keeps working. The research work, it should never stop. And if that is stopped, it means your effective and mattering existence cease to function. तो साथ साथ तहकीकी काम भी जारी रहना चाहिए, और जब हम तंजीम पे आएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें बाकायदा हम एक सेक्शन या एक डिपार्टमेंट या एक विंग, whatever name you want to give it, you can do it. We have to keep it, which is only attached with the research work, and it feeds to all the concerned people or to all the concerned components of the organization. And this should be a continuous process, as I said. It doesn't have to stop or cease. Even when the crises are going on, your research work should also keep going on. And that is the field work, and that's really very, very paying. And it's the real time when you can physically also observe the things, and then you can draw many lessons from that and carry out real research. And that data is very precious for you. A log has to be maintained, a diary or log of the events, what all is happening, what all the reaction was, what difficulties were confronted, what comfort was felt, and what odds were experienced. यही वो सारी चीज़ें हैं जो बार बार पैदा होती रहती हैं, हर क्राइसिस में रिपीट होती हैं, और इन पे जब हम अपने ही रिसर्च वर्क के साथ एक बाकायदा मेथोडोलॉजी पैदा कर लेंगे, we'll be able to have a very set procedure and set of many procedures also, and they'll facilitate. And in future, probably we would be requiring very small modification or amendment or incorporation of certain new measures and discarding certain outlived measures. So, this organization is not only an आग बुझाओ किस्म की organization, it has to have a research orientation phase also. See the next point, duplicate communication network. Now remember, if the telephones of a company cease to function for one day or 24 hours, and you have no alternative means, you know what will happen.
the whole system will be paralyzed. Many crimes are committed by neutralizing the communication systems, first of all. And there's all the likelihood then when we are facing inhospitable weather or climatic conditions, inhospitable circumstances. Crisis is always inhospitable, as we know. It is bound and it is definitely likely to affect your communication also adversely. And if your communication is affected adversely, now that means your job is stopped. You're paralyzed. अगर तूफान आएगा, mob होगा, flood होगा, quake होगा, God forbid. We are not talking very healthy things, but this is what crisis is. तो उसमें जो आपके जो टेलीफोन के खंबे हैं, वो कितना सस्टेन करेंगे? Or even one odd naughty character can play with that telephone pylon, or even the exchange, or from where the communication is reaching you, or it may be due to the fast wind or anything else. So ये सोचना है आपने कि communication आपकी कितनी reliable है. Don't rely only on one type of communication. You must have the alternative system, and you must have at least duplicate arrangements for a system. What happens if a tower of any cell phone communication goes off? Now you are again in the wilderness. So, जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दे रहे होते हैं, हम इसकी तंजीम बना रहे होते हैं, तो ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है कि आपका जो अबलागियात का निज़ाम है, जो एक दूसरे को देखें उस वक्त आपकी ज़रूरत क्या होगी, इंतहाई सुरत रफ्तारी से, बहुत तेज़ी से किसी को आपने इंफॉर्मेशन देनी है, किसी से आपको इंफॉर्मेशन लेना है. And if that process stops, this means your function stops. अगर आप उस सोर्स तक या उन रिसोर्सेज तक रसाई हासिल नहीं कर सकते जिनकी आपको फौरी तौर पे अशद ज़रूरत है, तो फिर आपने जितने भी प्लान्स बनाए हैं, जितने भी मंसूबे बनाए हैं, वो महज कागज़ों के ढेर रह जाएंगे या सीढ़ियों के बंडल आपके पास रह जाएंगे, but you will not be able to achieve your aim. That is why you must have always at least duplicate arrangements of communication. And it is possible. Today, the world has progressed so much in information technology that you can have even 3 layers of communication. One goes off, you try to repair that, but you switch over to another one. That goes off to switch over to the third one. And in the meantime, your first one should be repaired and functional, etc. So, to cut it very short and to keep it very simple, communication network सिर्फ एक टेलीफोन पे आसरा ना रखें. Have your computers also. Have your cell phones also. Have your landlines also. And also keep some alternative place, some other departments, maybe some neighboring places. If your communication system goes off, you can seek help from them on temporary basis, but it has to be coordinated with them before time. उस वक्त जब आपका टेलीफोन ख़राब हो गया है, तो आप पड़ोसी के पास या दूसरे के पास जाएंगे कि जी मैंने एक फ़ोन करना है बड़ी जल्दी में, तो वो कहेगा भाई बैठ जाओ,
मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, और he'll say sorry, मैं तो अभी ब्रेक पर हूँ और अभी तो कोई आदमी यहाँ है नहीं है, and I'm sorry, I'm not authorized to give you access to this telephone. So just try to work out the pros and cons, the consequences, how big problems can be created for you by failure of your communication. I don't think there's more need to explain it anyway, but communication should be on your top priority, as it is your legs and your arms to move and to do the things. The ability of performing practical work will be severely hampered if our communication goes off. Okay, let's see what else our organization must have. Fast and balanced dissemination of information. अब यहाँ क्योंकि हम बात ही बहरानों की कर रहे हैं, बात ही हम क्राइसिस की कर रहे हैं, तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी अहमियत कम हो। हर पॉइंट की, हर उस बात की जो हम कर रहे हैं, उसकी अहमियत अपनी जगह पे मुसद्दक़ा है। इट्स एब्सोल्यूट नेसेसिटी, इट्स ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसिबिलिटी। और जब तक हम इस मयार पे पूरा नहीं उतरते, उस वक्त रास्ते में कहीं भी कुछ हो सकता है। यहाँ हमने बात की फास्ट एंड बैलेंस्ड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दो लफ्ज़ हमने जो की वर्ड्स इसमें यूज़ किए हैं, फास्ट एंड बैलेंस्ड। देखें, जब बहरान आते हैं तो वो बहरान ऑन ग्राउंड तो मौजूद होता ही है, लेकिन हमारे दिमाग में जो बहरान आता है, असल में वो काम ख़राब करता है या वो काम को संभाल लेता है। बोथ वेज इट फंक्शंस। इफ द थिंग हैज़ हैपेंड, द फर्स्ट थिंग इट दैट यू हैव टू, जैसे मैंने मोबिलाइजेशन की बात की थी, फौरी तौर पे आपको कुछ लोगों को या ज़िम्मेदार लोगों को या मुतलका लोगों को कोई इंफॉर्मेशन, इत्तलात देना है। अब ये वो टेस्ट है जो आपके ऊपर इस वक्त हावी हो जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन दें, किस तरीके से दें। ऐसे ऐसे दिलसोज वाक़यात जन्म लेते हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक, दिल बर्दाश्ता करने वाले अलमनाक हादसात, क्राइसिस नाम ही हादसात का है, वजूद में आते हैं कि एक दफ़ा इंसान का जहन, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, इट इज़ शेकन एंड it assumes a form which really somewhere rings a bell कि from where to start, how to start, what to say first, what not to say. तो उसका इलाज है बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन, जो हमने आपको कहा है। Most of the people will start from chaos, confusion, ambiguity and exaggeration. ये चार लफ्ज़ मैंने जो बोले हैं, इन पे हम आइंदा भी बात करेंगे तफसील से, लेकिन जो हमने तफसील से बात करना होती है वो मैं आपको पहले थोड़ा सा उसका हिंट इसलिए दे देता हूँ कि आपको ज़हनी तौर से तैयार रहें आप, और फिर आपको समझने में आसानी भी रहे। मुबालगा आराई, चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, ज़रूरत से ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करना, ये ऐन इंसानी फितरत है। And it has got so many reasons behind it. It doesn't happen at one level only, it happens at many levels. And it happens quite frequently. ऐसी सूरत हाल को बैलेंस, जो मैंने आपको कहा था, you have to keep your senses. आपको ऐसे हालात में अपने आप को नॉर्मल, मजबूत, कंपोज्ड रखना होगा, और फिर
ये एक डिसीजन लेना होगा कि कितनी इंफॉर्मेशन किसको पास की जाए। अब ये देखिए कि जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन पर, उस इदारे पर या उस शख्सियत पर या उस ओहदेदार पर एक रिएक्शन भी होना है। और वो रिएक्शन जो है, दैट विल आल्सो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर सक्सेस और योर फेल्योर। कि दूसरा शख्स कैसे बिहेव करता है जब आप खुद ही उसको इतनी कयाटिक, कंफ्यूज्ड और अफरा तफरी की इंफॉर्मेशन उस लहजे में, उस स्टाइल में, उस आवाज़ में दे देते हैं, तो उसका इससे मुतासर होना एक यकीनी सी बात है। और जब वो मुतासर होगा तो वो अपने से आगे वालों को उससे भी ज़्यादा मुतासर करेगा। सो हियर passing the information or dissemination of information towards the higher people or towards the lower segments, fast is the key. It doesn't mean that you should sit on the table and have your head on the table and start thinking and enjoying the sympathies with the people कि अच्छा जी ये क्या हो गया है, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बड़ा दुख हुआ है इसका। ये इसका इलाज नहीं होता ऐसे कामों में। ऐसे वक्त में आपने फास्ट का लफ्ज़ भी याद रखना है और बैलेंस्ड का लफ्ज़ भी याद रखना है। कोई बात ऐसी मुंह से आपने नहीं निकालनी जिस पे आपको पछतावा हो या जिस पे लोग ओवर रिएक्ट करें, और इतनी सबमिसिव इंफॉर्मेशन भी ना हो कि पीपल अंडर रिएक्ट। रिमेंबर दीज टू वर्ड्स, ओवर रिएक्शन इज आल्सो नॉट गुड and under reaction is also not good. It has to be balanced. Well, you don't have an instrument to measure all these things, that they are really balanced 60% plus 40%, but nearly you should try to observe these two things. आपसे कोई ये तवक्को नहीं करेगा और आपको भी अपनी ज़ात से ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि आप रियाजी के फार्मूले के मुताबिक ही इंफॉर्मेशन को फास्ट और बैलेंस रख सकेंगे। वेल, वी आर आवर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन फैक्टर इज ऑलवेज देयर एंड इज प्रेजेंट इन आवर पर्सनैलिटीज irrespective of who is what, but still you can practice, you can think over it before time, you can train your mind, you can have even physical training, and you can practice these things, and ultimately it will be very much possible for you and you will be successful in dissemination of information. यहाँ मैं एक और बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि असल जो मामला शुरू होगा, असल जो प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्राइसिस मैनेजमेंट होगी, या उसके रिएक्शन सामने आएंगे, या वो बहरान एक ख़ास समत इख्तियार कर लेगा, एक ख़ास डायरेक्शन इख्तियार कर लेगा, वो आपकी इस पहली इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, देयर आर कोर्सेज इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज and in many specialist organizations where people are trained to tell the people how to open or how to unfold a tragic, accidental or any type of crisis event. जो पहला सेंटेंस आप कहते हैं, जो पहला फ़िक्रा आप कहते हैं, जो पहली इंफॉर्मेशन आप देते हैं, उसी से ही उस बहरान की कैफियत का अंदाज़ा लोगों ने करना है और उससे ही वो एक अपनी समत या एक डायरेक्शन इख्तियार करेगा। ऑल्सो रिमेंबर दैट इट्स टू वे। वन साइड योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू परसीव, एक तरफ तो आपकी अपनी इदारे ने, आपकी अपनी तंजीम ने
आपकी इस इंफॉर्मेशन से ये असेस करना है कि हम किस तरह के बहरान से नबरदाज़मा होने के लिए तैयार हैं या तैयार होना पड़ेगा हमें. And they have to undergo lot many things. Like I said, coordination, like I said, pooling up of resources, mobilizing certain resources which are required. इसका दूसरा अहम पहलू ये है कि जो पब्लिक रिएक्शन है वो भी आपकी इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन से ही गेज होगा और इसी से ही शुरू होगा. यू मस्ट हैव सीन इन मैनी प्लेसेस, कभी आपने अगर कबड्डी का, क्रिकेट का मैच देखा हो या किसी जगह पे बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा फसाद देखा हो, वो फसाद हमेशा एक स्लोगन से शुरू होता है और विद अ बैड वर्ड. उस एक लफ्ज़ के बाद या उस एक नारे के बाद कोई कुछ नहीं सुनता किसी की कि कौन क्या कह रहा है और एक हंगामा आराई शुरू हो जाती है. एंड इट गोज ऑन टिल द पार्टीज आर एग्जॉस्टेड एंड आफ्टर कपल ऑफ डेज or after they are tired or after sufficient damage has been done, they start thinking कि हुआ क्या था, what had really happened. वो कहते हैं वो फलां शख्स ने ये कहा था, उसकी वजह से कहा. वो दूसरा कहता नहीं, उसने नहीं कहा था, ये तो फलां आदमी ने कहा था, उसकी वजह से ये सारा हंगामा हुआ. वो कहते हैं आप तो इससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो आप इस हंगामा आराई में क्यों उलझ गए. इसे मैं तो नहीं उलझना चाहता था, बट somebody grabbed me also. I had to react. मैं क्या करता. अब देखें ये सारे का सारा confusion फैल रहा है और in one ambiguity, in one doubtful situation, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की और सारे ही उसमें शामिल हो जाते हैं. So remember that this first dissemination of information, it's very, very important. And it plays a very important role on both sides. Reaction of your organization and reaction of the people or the affected areas or those victims or people associated to the victims. So be careful and start practicing कि जब हम अपनी आम जिंदगी में भी गुफ्तगू करते हैं तो हम कई दफ़ा बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए. वी ऑलवेज नमक मिर्च लगाना, क्योंकि उसके बग़ैर महफ़िल की गुफ्तगू सजती नहीं है, अच्छी नहीं लगती, उसमें लुत्फ़ नहीं आता, लोग उसमें एब्जॉर्ब नहीं होते. बट रिमेंबर इट हैज़ गॉट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो. वन हैज़ टू, किसी न किसी स्टेज पे आपको कोई ज़रूर कहेगा कि फ़लाँ महफ़िल में बैठ के तो आपने कहा था कि मैं तो बहुत बड़ा क्राइसिस मैनेजर हूँ, लेकिन ये छोटी सी सिचुएशन भी आपसे मैनेज नहीं हो सकी. या आपने ये दावा किया था कि मुझे तो क्लासिकल म्यूज़िक भी आता है और आपको तो सारे गामा पादानी भी नहीं आता, और सानी दापा मागारेसा भी नहीं आता कि आप इसको उल्टा इस सरगम को कह सकें. सो फिर कितनी नदामत होगी, कितनी आपको परेशानी होगी. या आपने कहीं क्लेम कर दिया कि जी मैं तो बहुत अच्छा कारी हूँ, बट यू आर नॉट. मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ. सो वन शुड ऑलवेज ट्राई ओवर एक्सप्रेशन, अंडर एक्सप्रेशन, exaggeration, and use of unauthentic information, unauthentic data and figures and jargons, जिनको आप समझते हैं. jargons का मतलब आपको शायद पता होगा कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका मतलब सिर्फ एक ख़ास जोग्राफियाई हद के अंदर होता है. अगर वही लफ्ज़ किसी और जगह आप जाके बोल देंगे तो उसका मतलब टोटली डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा, उसके रिवर्स होगा. सो यू विल फेस अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिट रिएक्शन. डोंट गो फॉर द ambiguous words also. Selection of words, लफ्ज़ों का इंतखाब एक बड़ा अहम और बड़ी इंतहाई ज़रूरी चीज़ है और मुश्किल भी है. हर चीज़ ही अज़ीज़ तालिब इल्मों मुश्किल होती है, उसमें हमें मेहनत करना पड़ती है.
और रब्बे कायनात ने हमें इसीलिए ये सारी सलाहियतें अता फरमाई हैं कि हम मेहनत करके ही उस मंजिल को या उस कामयाबी को छू सकते हैं जिसके लिए हमारे दिल में ख्वाहिश है, या जो काम हमें अल्लाह की जानिब से या कौम की जानिब से या अपने इदारे की जानिब से सौंपा गया है। सो रिमेंबर, dissemination of information is very, very important and it has to be very balanced. यहाँ चलते चलते आपको एक दफ़ा ये याद करा दूं कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जो बेमिसाल अनएग्जाम्पल्ड नज़ीर हमारे पास मौजूद है वो हमारी किताब मुबीन है कि अल्लाह करीम ने किस मिजाज की इंफॉर्मेशन किस तरीके से हमें दी। अगर आप गौर से कुरान हकीम ही का मुताला करेंगे और आप उसके तर्जुमे को भी समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में खुद ब खुद वाज़े होते जाएंगी कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के हालात में, और वो कैसे और कितना इफ़ेक्टिव होता है। हम अगर सूरह फातिहा की जानिब जाएं तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अगर आप कह दें और पढ़ें, एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर टू यू। अच्छा, हमारे किताब मुबीन में बहुत सी जगहों पे जहाँ कोई खौफनाक बात भी करनी है तो उससे पहले जो उसका बेस बनाया गया है, जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से उसको बताया गया है, और फिर साथ ही साथ उसकी खुशखबरियाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो एक शख्स जो है वो कत्तन उस अज़ाब को पढ़ के मायूस नहीं हो जाता, नाउम्मीद नहीं हो जाता, उसके आगे उम्मीद भी है। सो दिस इज़ एन आर्ट and it has to be mastered. That's, I would say, at the end of this heading that we are studying right now. I'm sure you must have understood how important it is to have fast and balanced dissemination of information to the required people. और ये information also on as required basis आपने देना है। Relevant information to relevant people or portfolio, जिससे मुतल्लिका है उसी को ही उतना बताएं, हर किसी को वो ढंढोरा देने की बात नहीं है। Then you will spread the fear, and spreading the fear means you are asking for trouble yourself. So on need to know basis is the golden principle for fast and dissemination of balanced information. Also keep in mind fast decision making ability. Fast decision making ability, फैसला एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगियों से लेकर कौमों की जिंदगियों तक या तो खूबसूरत दरीचे खोल देती है या इंतहाई बदसूरत हालात को भी जन्म देती है। तो फैसला करना एक मुश्किल काम है। आपसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी ये सोचा कि आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या फैसला किया है कि आखिरकार आप क्या बनना चाहते हैं? हम यही एक फैसला नहीं करते और फिर हम कभी इधर निकल जाते हैं और कभी उधर निकल जाते हैं। सो फैसले का मतलब ये होता है टू रीच अ कंक्लूजन, टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब यहां जब आपके सामने इस तरह की सूरत हाल है जिसको हमने बहरान का नाम दिया है, तो उसमें लम्हा लम्हा फैसला साजी आपका काम है। और ये भी आपको सोचना है कि जो भी आपने फैसला किया वो सिर्फ आपकी मर्जी
पर मबनी नहीं है, वो सिर्फ आपको मुतासर नहीं कर रहा, वो कितनी सतहों पर कितनी ही चीज़ों को किस अच्छे या बुरे तरीके से मुतासर करेगा, और उसका अल्टीमेट आखिरकार नतीजा क्या बरामद होगा। अगर उसका वो नतीजा बरामद नहीं हुआ जिसके लिए हमने ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इतना बड़ा अदारा बनाया, जिसके लिए बिल्डिंग्स ली, रिसोर्सेस लिए, इतने लोगों से कोऑर्डिनेशन की, तो सिर्फ एक फ़ैसला जो है उसकी वजह से हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर गया, तो दैट्स रियली अ डिफीट, इज़ नॉट अ विक्ट्री। लेकिन साथ ही मैं ये भी कह रहा हूँ कि फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होता है। अपनी ज़िंदगी में भी आप देख लीजिए कि बहुत सी चीज़ों को हम तर्क करना चाहते हैं, हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं, हमें उनके नुकसानात का भी पता है, हमें उनकी ज़ररसां खुसूसियात और सिफ़ात का भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लुढ़कते रहते हैं। आम जिंदगी से आपको मिसाल इसलिए देता हूँ कि जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ को ये ना समझें कि ये कोई बहुत बड़ा आसमानी सहीफ़ा है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। नहीं, ये सारी ही चीज़ें आपसे अमली तौर पर वाबस्ता हैं, आपकी ज़िंदगियों में, आपके माशरे में, आपके माहौल में मौजूद हैं, और आप ऐसा करते हैं। फैसला साजी की एक सिंपल सादा सी 2-3 मिसालें मैं आपको देकर समझाना चाहता हूँ। A smoker knows the maximum bad effects of smoking. He wants to quit it also. उसको डॉक्टर भी मना करते हैं। सिगरेट के नुकसानात का सबसे ज़्यादा इल्म खुद सिगरेट पीने वाले को होता है। वो कई दफ़ा बीमार भी होता है, डॉक्टर्स भी उसको एडवाइस करते हैं, लेकिन बात फैसले पे आके रुक जाती है। फैसला नहीं कर सकता कि इतना अरसा सिगरेट से दोस्ती की, अब यक लख्त इसको क्या दगा देना है, क्यों छोड़ना है। लेकिन देखिए, ये फैसला ना करने से जो दिन ब दिन उस स्मोकर की ज़ात को नुकसान हो रहा है, नोबडी कैन अस्यूम दैट। ये खौफ को करने वाली बात नहीं है, लेकिन आए दिन इस पे नई तहकीकात और रिसर्च होती रहती हैं, और एक बड़े मारूफ इदारे ने जो इस पे ताज़ा तरीन तहकीक की, तो ये कहते हैं जी कि हर एक सिगरेट आदमी की ज़िंदगी 5 मिनट कम कर देता है। तो कभी आप कैलकुलेट करें कि हम एक दिन में जितने सिगरेट पीते हैं और उन सब को अगर 5 मिनट से ज़रब दें, और बड़े ब्लंट लफ्ज़ों में, बड़े बेबाक लफ्ज़ों में हम ये कहें कि वी आर रिड्यूसिंग आवर ओन लाइफ knowingly, willingly and voluntarily, and also burning our money along with the lungs. Why it's happening? It's happening because we are not able to take a firm decision. हम ये अब इसके दूसरे रुख को सोचें कि क्या वो लोग जो सिगरेट नहीं पीते वो इस कायनात में जिंदा नहीं है? What happens to them? They are probably enjoying better health. Take the example of a driver. He has to take a decision at every moment till the time he's holding the steering in his hand and his foot on the accelerator. अब जहां कहीं उसने एक गलत डिसीजन लिया, थोड़े से लालच की खातर या थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन की खातर, या hurry is on his nerves, or it's just because of some other factor that he wants to reach someplace very quickly and fastly, then one wrong overtaking can claim his own life. Destruction of the vehicle is also on the other side. लेकिन ये फैसले ही की बात है। इस तरह से एक मारूफ मिसाल भी है कि पायलट और कायदीन जिंदगी में एक ही बार गलत फैसला करते हैं और उसका
वापसी का कोई रास्ता नहीं होता. The pilot has to commit only one mistake, one bad decision in his life, and it cannot be reversed. ये आपकी क्राइसिस भी एग्जैक्टली इसी तरह से है. तो इसमें आपने ये नहीं कह देना कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ ना, आई एम इन द डिसाइडिंग चेयर, सो ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, नहीं होता. You have to have lot many factors in view. People will be at your disposal. We have kept a separate entity for this, a separate segment or an organization within the organization. और आपने ये पहले तय करना है कि हम फैसला साजी कैसे करेंगे, कि अगर तूफान आता है तो उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस किस लेवल के लोग शामिल होंगे, उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ होंगी, वो कितनी देर में हम तक पहुंच जाएंगे, और जो वो फैसला करेंगे उस पे हम देन विल हैव आवर डेलिब्रेशंस एंड क्विक एंड फास्ट, क्योंकि हमने पहले से अपना होमवर्क भी किया होगा. दैट विल बी प्रॉब्ली द क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. So, if situation A occurs, then the decision-making team may have to be different. If the situation B occurs, altogether your team for decision-making may have to be different. And likewise. And then decision is not taken in utter blindness. हक़ाइक़ को सामने रख के, ground realities को, वसाइल को, लेवल ऑफ थ्रेट को, लेवल ऑफ क्राइसिस को, क्वांटम ऑफ क्राइसिस को, टाइम ऑफ क्राइसिस को, उसका स्पैन कितना पॉसिबली हो सकता है, वगैरह वगैरह. और ये फैसला एकदम ही एक ही डिसीजन नहीं होता जिससे आप सारे क्राइसिस के मंजर से बाहर आ जाते हैं. दिस डिसीजन प्रोसेस इज आल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये मुसलसल जारी रहेगा till the time the crises are absolutely managed and overcome, and now there is no doubt left behind that they can erupt from somewhere, or they can regain momentum somewhere, or they can assume some other shape or some other form. अब decision making किस तरीके से टेक्निकली, we will talk about decision making in a separate lecture. What are the factors, what things we have to keep in mind, how we have to operate, and what all is required in the shape of input, and how we'll gauge the output. So remember one thing, that don't make decisions in hurry because of the circumstances which are riding your nervous system or your brain. हालात, खतरनाक हालात, बुरे हालात जब आपके आसाब पर सवार होते हैं, तो उस एहसास के साथ फैसला साजी ना करें. देखिए कि आपके सामने मंजरनामा क्या है, और जो लोग मुतल्लिका शोबाजात के स्पेशलिस्ट हैं, जिनको उस पर दस्तरस हासिल है, उनकी राय भी साथ साथ लीजिए. लेकिन फैसला करना एक मुश्किल काम है. तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा. अजीज तालिब इल्मों, आज हमने फीचर्स ऑफ इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गुफ्तगू की, एंड आई हैव taught you couple of characteristics, inbuilt qualities and features of an effective crisis management organization. याद रखिए कि सिर्फ इदारे बनाना बहुत का बड़ा काम नहीं,
मौसर इदारे बनाना दरअसल काम है। अपनी शख्सियत को भी मौसर बनाने के लिए, इदारों को भी मौसर बनाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है। एंड प्रे टू गॉड ऑलमाइटी, वंस वी कीप द थिंग्स इन आवर माइंड, वी आर सिंसियर टू आवर कॉज एंड वी आर डेडिकेटेड, then the blessings of Almighty Allah always come and help us, and He is with us. For this lecture, here we come to the end. With all my best wishes, till the next lecture, Allah Hafiz.